السلام علیکم میرے پیارے یوٹیوب فیملی، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور سوستھ ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں ویست ہوں گے۔ تو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، پر یہ میرے ہسبینڈ ہیں تھوڑا بیمار ہیں، تھوڑا بول کے بہت زیادہ بیمار ہیں۔ دیکھیے میرے ہسبینڈ، میری شادی ہوئی تھی اپریل 30 2001 میں، اور میری شادی کو 19 سال ہوا ٹھیک اسی دن 2020 میں اپریل 30 میں ان کی تھوڑا طبیعت خراب ہوئی، چیسٹ میں ہلکا سا پین ہوا اور ڈاکٹر کے پاس گئے تو کیا انجیکشن دے دیا تو برین ہیمریج ہو گیا۔ برین ہیمریج ہو گیا تو پھر برین کا آپریشن ہوا، اس کے بعد 12 دن میں تھوڑا نارمل ہو گئے۔ پھر جیسے وارڈ میں لائے تو ویسے 2 گھنٹے میں ایسے ابھی جیسے کھانس رہنا ایسے کھانسی ہوا، یہ یہاں ٹریکسٹومی پڑا تھا تو سکشن ہوتا تھا، شاید اسی کی وجہ سے کہ کیا پتہ نہیں، تو آف ہو گئے تو پھر سے لے کے گئے آئی سی یو میں، تو آئی سی یو میں سی پی آر دینے کے بعد 45 منٹ میں ان کا جان واپس آیا۔ تو اس کے بعد سیریس اتنی کنڈیشن، ان کی حالت اتنی بری ہو گئی، پورا بری کنڈیشن میں آ گئی۔ یہ آنکھ کا جو کالا والا تو وہ پورے اوپر ہو گیا تھا اور آنکھ پورا بالکل سفید ہو گیا تھا، صرف سفید ہی آنکھ دکھتا تھا، کالا والا حصہ تو تھا ہی نہیں ایسا مانو۔ اس کے بعد اتنی پریشانی، ہر آئے دن ڈاکٹر جواب دے دیا کہ اب تو ان کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا اچانک سے پورے بدن کا بلڈ چلا گیا، بلڈ ہی نہیں رہا۔ پھر جیسے تیسے کر کے پھر بلڈ چڑھائے تو پھر تھوڑا ریکور ہوئے۔ پھر ایسا ہوا کہ یورین پورے بند ہو گیا، پھر انجیکشن دوائی دیے تو پھر یورین چالو ہوا، تو اتنی چالو ہوا تو پورے بدن میں یورین بالکل ایک قطرہ بھی رہ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر دوائی دیے تو تھوڑا کنٹرول ہوا، پھر اچانک سے ایسے ہونا بی پی پورے ہائی ہو گیا، پھر ایسا ہوا تو بی پی پورے ڈاؤن ہو گیا، اور وہ انفیکشن ہو گیا تو انفیکشن 11,000 رہنا چاہیے، وہ ہو گیا 17,000۔ مطلب اتنی مشکل اتنی پریشانی آئی، 2 مہینہ آئی سی یو میں رہے، 2 مہینہ کنٹینیو۔ تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا رائس ٹیوب تو سے پڑا تھا، یہ گلے میں ٹریکسٹومی بھی سے پڑا تھا، تو کیا کریں، پریشانی ایسے آئی۔ پھر 2 مہینے بعد نا وارڈ میں لائے نا، پھر بھی ویسے ہی کنڈیشن رہا، پھر دھیرے 1 مہینہ وارڈ میں رکھ کے پھر گھر لے کے آئے تو کم سے کم 8 مہینے بعد نا تو رائس ٹیوب نکل گیا، یہ جو گلے میں ٹریکسٹومی تھا وہ بھی نکل گیا۔ تو مجھے ایسا لگا کہ اب ایسا لگا کہ اب دھیرے ٹھیک ہو جائیں گے، دھیرے تو تھوڑا بہت ٹھیک ہوئے، پھر جیسے ہاتھ پیر پورے گلے کے پاس سے نا پورے ہاتھ پیر سب سون تھا، تو فزیو تھراپی لگائی، ابھی بھی لگا ہے، 4 سال سے ہی لگا ہی ہے فزیو تھراپی۔ تو فزیو تھراپی لگائی نا تو 3 مہینے میں نا اچھا ریکور بھی ہو گئے، تھوڑا ہاتھ پیر ہلانے لگے، تھوڑا کھڑا کرے تو کھڑا بھی ہونے لگے، تو ابھی بھی ایسے تھوڑا بہت چلتے ہیں، پر وہی کہ ان بیلنس ہیں، جیسے میں پکڑ کے اگر چلاؤں گی تو ایک دم پورے طاقت سے پکڑوں گی تبھی چل پائیں گے، نہیں تو ایک ذرا ہاتھ ڈھیلا چھوڑوں گی تو ایسا لگے گا گر جائیں گے۔ تو باتیں تو بہت لمبی ہے،
रातों दिन ख़त्म हो जाएगी तो बातें नहीं ख़त्म होगी, ऐसा टाइप मामला हो गया है। तो अभी भी ऐसे है ना, तो दिन भर में एक टाइम नहीं तो 2 टाइम खाना खाएंगे, ज़्यादा खाना नहीं खाते, 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम ऐसे खाना खाते हैं। तो कैसे करें इनको समझ के कुछ भी। और ऐसा होता है ना, ऐसे पेशेंट जिसके घर में है ना वो जानेंगे मेरी परेशानी। और ऐसा होता है ना, जैसे बीमार होता है ना तो पता ही नहीं चलता है कब बीमार हो जाता है, जैसे पूरा आँख ऐसे चौकन्ना रखो है, थोड़ा से सुस्त हुए ना तो मुझे देखना पड़ता है, समझना पड़ता है अरे ये सुस्त क्यों हो गए हैं, तो फिर पता चलेगा कि अरे ये सर्दी हो गया। तो मुझे पता चलते चलते एक आध दिन 2 दिन ऐसे हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब बीमारी बढ़ जाता है। हम लोग को कैसा सर्दी होता है, बुखार होता है तो तुरंत पता चल जाता है, तुरंत कोई दवाई ले लेते हैं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, पर इनके मामले में ऐसा नहीं है। तो वही, जैसे इनकी कोई सेंस भी नहीं है, जैसे ऐसा लगा कि मुझे भूख लग रहा है खाना दे, मुझे प्यास लग रहा है पानी दो, ऐसा भी नहीं है। ऐसे मतलब किसी चीज़ का उनको सेंस नहीं है, मतलब अभी तक भी उनकी ना याददाश्त है ना वो वापस नहीं आती है, मतलब 4 साल पूरा होके 5वां साल चल रहा है। तो ऐसे जब मेरे कोई अगर वीडियो देखते होंगे कोई आलिम साहब, तो प्लीज़ जैसे आपके पास कोई वजीफ़ा होगा तो मेरे को बताइए, जैसे पानी में कुछ पढ़ के दम करके पिलाऊं, या उनको कोई कुछ पढ़ के फूंकूं। तो कोई भी अगर ऐसे देखते होंगे आलिम साहब, या किसी को पता होगा कोई ऐसे आलिम साहब होंगे जो इनको कुछ मदद मिल सके उनसे, तो मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि मुझे कुछ मदद मिल पाए। और अगर प्लीज़ कोई डॉक्टर अगर देखते होंगे तो मेरी प्रॉब्लम का अगर आपके पास कोई हल होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ। ऐसा लगता है ना, एक बीमार है तो पूरा मेरे घर बीमार है। अब मेरे बच्चे भी 2 हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। ऐसा लगता है कमाना वाला पड़ गया तो मतलब धीरे धीरे घर की परेशानी इतनी वो हो रही है, तो मैं किसको बताऊं, किसी को बता भी नहीं सकती हूँ, ना किसी से कुछ उम्मीद भी नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा दूसरे टाइप की हूँ, तो जैसे अपने कोई परेशानी में जी लूँ लेकिन किसी को कुछ ना बोलूँ, इस टाइप मेरा व्यवहार है। तो बस मेरे लिए यही है कि बस ये अच्छे हो जाएं, बस ये थोड़ा से अच्छे हो जाएं तो मेरे को सारी दौलत मिल गया, ऐसा मान लो। अब ऊपर वाले की क्या मर्जी है, वो क्यों हमको इतनी परेशानी दे के रखा है, अब हमसे बेहतर तो वही जानते हैं। और कब उनको शिफा देगा, कब मेरे घर में कोई थोड़ा सा भी खुशी देगा, क्योंकि मैं तो 4 साल से कोई एक खुशी नहीं देखी हूँ, ऐसा मान लो, तो एकदम मर ही गई हूँ। अब तो ऐसा लगता है तो अब तो जीना ही नहीं है मुझे। देखो ऊपर वाला इतना तकलीफ दिया जिसको मैं सब्र भी नहीं कर पाती, कितना करूँ, साल 6 महीना करूँ, कितना करूँ, 4 साल कंप्लीट हो गए, 5वां साल चल रहा है। रोज़ का हर रात में ये सोच के सोती हूँ कि कल का दिन मेरे लिए कुछ अच्छा आएगा, लेकिन ना, मेरे लिए कल का दिन भी वही काला सवेरा आता है। तो मैं इस तरह से बहुत परेशान हो गई। जब आप लोग के पास मुझे कुछ ऐसा कुछ मसला मिल जाए ताकि मेरी कोई मदद हो सके तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। इस बहन का सपोर्ट कीजिए, कुछ तो मदद मिलेगा, कुछ तो इनको कोई अगर डॉक्टर आपके पहचान में भी अगर कोई डॉक्टर होंगे तो मेरी वीडियो को उनको शेयर कीजिए ताकि वो मुझे कुछ सलाह दे सकें कि ठीक हो सके। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ बहुत आस से जाती हूँ, हर डॉक्टर के पास, जो भी मेरे को बोलते हैं ये डॉक्टर अच्छे हैं, वो डॉक्टर अच्छे हैं, तो मैं बहुत आस से जाती हूँ ताकि यहीं पे जाऊँगी तो मेरे हस्बैंड अच्छे हो जाएंगे। पर क्या करूँ, कुछ दिन दवाई खिलाती हूँ और कुछ दिन उनकी ट्रीटमेंट लेते हैं
تو वही फिर मायूस हो जाती हूँ, चलो अब कुछ नहीं होगा। अब जैसा लगता है बस ज़िंदगी मेरी थम ही गई है, एक जगह थम गई है। ये है। अब बोलने के लिए तो बहुत बातें हैं, अब क्या मैं अभी बोलूँ। अब इतना टेंशन ले के अब ऐसा लगता है ना मैं ही बीमार हो रही हूँ। काम तो काम, टेंशन तो अलग ही है, परेशानी तो अलग ही है। तो एक इंसान कितना झेले, कितना करे, कितना सहे। तो सहने का भी तो एक हद होता है ना कि चल अब कुछ तो दिखा है, कुछ तो दिख रहा है आसरा, कुछ तो ऐसा कुछ समझ में आए, चल अब थोड़ा से अच्छे हो जाएंगे। ऐसे थोड़ा से कभी कभी ऐसे रहता है ना, थोड़ा से ऐसे बैठे रहते हैं तो ऐसे लार टपकते रहते हैं, और ऐसे रहता है तो कभी कभी ऐसे मुंडी भी हिलते रहते हैं। तो जहाँ भी जाती हूँ डॉक्टर को बताती हूँ, डॉक्टर बोलते हैं इसकी कोई दवाई नहीं है, जो भी इनकी होगी, जो भी इनकी इम्प्रूवमेंट आएगी ये खुद से आएगी। खुद से कैसे आएगी, उनको तो कुछ समझ ही नहीं है, तो कैसे खुद से कैसे आएगी। तो ऐसे बीमारी का कोई साइंस में भी इलाज नहीं है क्या। अल्लाह ताला अगर बीमारी दिए हैं तो उसका शिफा भी तो कहीं ना कहीं दिए होंगे, किसी न किसी के हाथ में तो इनकी शिफा दिया होगा ऊपर वाला। ऐसा थोड़ी है बीमारी दे के भूल ही जाएगा। अब ऐसा लगता है ना मेरा ही सर पूरे हो गया, क्या करूं क्या ना करूं, एकदम से परेशान हो गई हूँ। और थोड़ा थोड़ा खांसी भी होता रहता है इनको, हर पल बेड में रहते हैं ना, शायद उसी की वजह से खांसी की दवाई भी खिलाऊंगी ना तो भी कोई रिलैक्स नहीं मिलती है। ऐसे बैठे रहते हैं ना, तो बैठा दूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट में हुए चेयर में, तो ऐसे मुंडी हिलाते रहते हैं, मुंडी हिलाते रहते हैं। तो बाकी तो बिस्तर में करवट भी नहीं लेते हैं, जैसे उठ के बैठना है नहीं बैठते हैं, जैसे करवट खुद से लें तो नहीं लेते हैं। ऐसा होता है ना कि रात में उठ के भी मुझे करवट दिलाना पड़ता है। एक साथ कितना सोएंगे, कहीं फोड़ी फुंसी तो ना हो जाए, ये डर के मारे रात में भी मैं सही ढंग से सोती नहीं हूँ। अब उनको देखते देखते इंसान देखा तो इंसान कितना देखे, हमारी भी मेरी भी तो जान है ना। तो मैं ही ऐसा लगता है ना अब ऐसे हो गई हूँ, ऐसा लगता है 100 साल की बुढ़ी हो गई हूँ। तो ऐसे ही ज़िंदगी सवेरे से रात, रात से सवेरे, ऐसे ही होके ना ज़िंदगी बीतता है। तब एक छोटी सी डॉक्टर की गलती के कारण ऐसा लगता है ना 4 ज़िंदगी पूरे बर्बाद हो गई। एक तो बर्बाद हो गए, वो तो पेशेंट होके पड़ गए, उनके साथ हम भी पेशेंट हो गए। अब क्या करें, किसको देख के जिएं। जो घर के कमाने वाले हैं वो 4 साल से पड़ गए हैं, तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। तो जिसके घर में ऐसे पेशेंट होंगे वो ही जानेंगे मेरी परेशानी। ऐसे तो परेशानी सब जानेंगे कि मेरे ऊपर मेरा कितने बड़ा परेशानी है। तो यही इसी का कहीं भी इलाज हो, कहीं भी कोई वजीफ़ा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। बस इतना ही मेरी गुजारिश है आप लोगों से। तो आप लोग थोड़ा सा मेरी मदद कीजिए, बस। और क्या बोलूँगी, यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। फिर और जो भी है मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊँगी।